My dear students, Assalamu alaikum. Hey, Mr. Isaac, your humble sir once again with you. So after the long time, I'm now in front of you. So hopefully you are fine and fit. You are all doing good job. So मेरे बच्चों, last time, last day I was going to explain chapter number 11. So being a second year student, I want to give you a reminder about the chapter number 11. So that first page I have explained you. Now today I'm going to translate page number 2nd, but before going to translate I'm going to explain about the chapter introduction. मैं अपने बच्चों को चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताऊंगा. हे बच्चों, in this chapter chapter number 11 there is a going discussion between the Ra of Relation and Chips. So secondly there is a showing they both dislike to each other. Even Chips was against to Relation and Relation was against to the Chips. So the matter was on both sides on the peak. तीसरी बात मैंने ये बताई थी, no doubt Relation was a man of science. Relation was a modern man. Relation was a very active person. So he built the school on the peak. There was no such a good progress in a Brookfield as see occurrence in the era of Mr. Relation. But another hand, Mr. Chips was a lazy guy. He was an outdated teacher. He was just pedagogical order, not up to the modern rise. So now we are watching the confliction between the both. Mr. Relation and Mr. Chips. So first of all, I'm going to explain the key point related to the chapter number 11, page number 2nd. Chapter number 11, page number 2nd. पहले पेज के बारे में भी बता देता हूँ. हे बच्चों, इन पेज 1 वी आर वाचिंग द बोथ आर गोइंग टू डिसलाइक ईच अदर. फिर हम उसके बाद देखते हैं कि मिस्टर चिप्स को रिलेशन ऑफर करता है कि नाउ यू आर 60, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट्स अबाउट यू, द पेंशन, अबाउट रिटायरमेंट. लेकिन जैसे ही चिप्स को रिलेशन कहता है पेंशन, रिटायरमेंट, चिप्स इज गोइंग हॉट टेम्पर, इज गोइंग इन एंग्री मूड. सो द बोथ एक्सचेंजिंग द हॉट वर्डिंग, द मैटर गोन इन अ फुल स्विंग. मामला जोरों पर चला जाता है. खैर, उसके बाद चिप्स को मिस्टर रिलेशन कहता है कि योर प्रोनाउंसिएशन पोर, your teaching style poor, you are a teaching dead language in a deadly style. क्योंकि तुम ग्रीक और लैटिन पढ़ाते हो और वो दोनों ही मुर्दा स्टाइल में. Because no doubt these are the dead language. कि this we know in the sense कि dead language should be teach in a deadly style. So must be needed to be a change your style. So the fact is going anomaly, not good, whatever stressing Mr. Relation to the Chips. So furthermore, on page 2nd, hey bachcho, furthermore on page 2nd, I'm going to describe page number 2nd. In a page 2nd, we are watching their Ra is now in hot temper. There is no chances is looking to cool down on both end. देर वाजा फायर ऑफ फ्लेम, दोनों तरफ आग भड़क रही है. सो नाउ ऑन चैप्टर नंबर 11 पेज 2nd पे हम देखते हैं बच्चों कि दोनों द बोथ आर गोइंग टू डिसलाइक ईच अदर. उसके बाद हम देखते हैं द बोथ आर पुटिंग ब्लेम ऑन ईच साइड. दोनों एक दूसरे पर शावर ऑफ ब्लेमिंग कर देते हैं, बौछार कर देते हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की. इस पेज में हम देखेंगे बच्चों, जो रिलेशन है वो कहेगा कि आज सच्ची बात मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ दैट
कि योर टीचिंग स्टाइल इज़ नॉट अप टू द मार्क, योर स्टाइल इज़ आउटडेटेड, नाउ यू नीड टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, you need to change your style. Your syllabus is whatever 30 year back, 10 year back, 2 decades back. As your style, there is no changing it at all. आगे मिस्टर चिप्स उसको गुस्से के साथ कहेगा, you are what you are, because this syllabus recommended 38 year back Mr. Weatherby and Mr. Meldrum. सो दे आर वेरी गुड पर्सन. लेकिन रिलासन हंस देता है. उसके बाद वो कहता है उसको, योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ थर्ड क्लास, यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो इन द लेट द टाइम कम, योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इफेक्टिव फॉर द एजुकेशन. और तीसरी और आखिरी बात कहता है, डिड यू सी द रिजल्ट ऑफ योर 4 रैंक, चौथी क्लास का आपने रिजल्ट देखा है. नो स्टूडेंट गेट अ टॉप, नो स्टूडेंट कम ऑन द टॉप. सो चिप्स उसको जवाब देता है, मुझे इन सर्टिफिकेट, इन रैंक्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे स्टूडेंट ही मेरे रैंक्स हैं. लेकिन रिलासन उसको कुछ कहता है, वो कुछ जवाब देता है जिसके लिए. और आखिरी बात, द लास्ट एंड फाइनल, मिस्टर रिलासन इज सेइंग, डिड यू सी एनी टाइम योर गॉन, आपने अपना गॉन देखा है. इधर मैंने लिखा हुआ है बच्चों, आखिर पे लिखा हुआ है, आखिरी पॉइंट में, डिड यू सी योर गॉन, कि योर गॉन इज़ अ फन अमंग ऑल द स्टूडेंट. सारा स्कूल तेरे गॉन का मजाक उड़ाता है, लेकिन चिप्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ता. अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसलेट विद सिनोनिम. अब मैं अपने बच्चों के सामने पढ़ने लगा हूँ. पेज नंबर, आई थिंक मेरी और आपकी बुक के एक ही पेज हैं, 26, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 26. चिप्स न्यू इट टू, बट इट हैड नेवर सीम टू बी हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर. चिप्स ने उसकी लड़ाई का कभी असर महसूस नहीं किया था. ये बच्चों, रिग्रेटेबल होता है पछतावा, फीलिंग्स, रिपेंडिंग, पॉन्डरिंग, कोई गौर करना. वो उस लड़ाई को नॉर्मल सी बात समझता था. He went on, and you also said Humph something about insubordination. अगर कहता है तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसको हुक्म अदूली समझता, अपने बॉस की बात के ख़िलाफ़ उसकी चार्जशीट लेता. नो आई डिडंट, आई सेड दैट इन अ यंगर मैन, आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट. अगर कोई तेरी जगह जवान टीचर होता, इधर भी मैंने लिखा है चौथे पॉइंट पे, अगर तेरी जगह कोई जवान टीचर होता तो मैं उसको समझता कि उसने हुक्म अदुली मेरी की है और उसके ऊपर कोई और मैं शिक लगाता. इन योर केस इट्स अ प्रॉबेबली द मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टेंसी. लेकिन तू है कि ज़िद्दी और सुस्त बना बैठा है. बच्चों, स्लैकनेस होता है लेजीनेस, स्लगशनेस, स्लोनेस, और ऑब्स्टेंसी होता है स्टबन, ज़िद्दी, कैलस, जो झूठा भी हो लेकिन अपनी बात पर डटा रहे. दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर रिलासन कहता है अपनी प्रोनाउंसिएशन ही देख लो कितनी ख़राब है. आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर गो, मैंने कई साल पहले भी तुम्हें बताया था चिप्स. आई वांटेड टू न्यू स्टाइल एंड यूज़ दैट थ्रू आउट द स्कूल. मैं स्कूल में नया तरीक़ाकार पसंद करता हूँ. द अदर मास्टर ओबेड मी, बाकी सब टीचर मेरी ताबेदारी करते हैं. यू प्रिफर द स्टिक टू योर ओल्ड मेथड, तुम अपने वही पुराने तरीके पर डटे पड़े हो. एंड रिजल्ट इज सिंपली chaos एंड इनएफिशिएंसी, जिसका नतीजा दिन ब दिन अबतरी है. chaos का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. बच्चों, ये लिखा है मैंने, वरी, नर्वस, सैडनेस, परेशानी. अगला पैरा बच्चों, एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजेबल. अब चिप्स के हाथ में उसकी एक बात आ जाती है, दैट ही कुड टैकल, जिसको वो करना चाहता है. अब वो क्या है? ओह, दैट ही आंसर्ड स्कॉर्नफुली. चिप्स बड़े नफ़रत अंगेज लहजे में
रिलासन को जवाब देता है, वेल ठीक है, आई एडमिट, मैं ये बात मानता हूँ, आई डोंट एग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, मैं बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ नई प्रोनाउंसिएशन पे, आई नेवर डिड और ना कभी हूँगा, लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में नई प्रोनाउंसिएशन सारी बेमानी है, बेमानी है, किसी काम की नहीं है। मेकिंग बॉयज से, बहुत सारे लड़के किकरू एट स्कूल, स्कूल में लफ्ज़ किकरू पढ़ते हैं, व्हेन हम द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स दे शैल से सिसरू, लेकिन बाकी ज़िंदगी उन्हें सिसरू पढ़ना है। इफ़ दे एवर, अगर वो ऐसा करते हैं, से इट एट ऑल, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इंस्टेड ऑफ विशियस, एक लफ्ज़ विशियस है, गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह ताला मेरे बच्चों पर रहम करे, यू वुडंट, यू वॉन्ट या मेक देम से, आपने उन्हें कभी सिखाने की कोशिश नहीं की, वी किस हिम हम्फ, शायद हम उसको प्यार से देखें, एंड ही चकल्स मोमेंटियरली, चिप्स ये सुनकर दबी हंसी हंसने लगा। ये बच्चों, चकल का मतलब होता है मुंह में हंसना, विस्पर करना, दिल में हंसना। चिप्स अपने मुंह में उसको देखकर सुनकर हंसने लगा, फॉरगेटिंग दैट ही वॉज इन रिलासन स्टडी एंड नॉट टू हिज ओन फ्रेंडली रूम, वो ये बात बिल्कुल भूल गया कि ये रिलासन का स्टडी रूम है, उसका कमरा नहीं है। ये बच्चों, पहले 2 पैरों में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि चिप्स की प्रोनाउंसिएशन 0 है, वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है, रिलासन उसको कहता है, चिप्स मानने से इनकार कर देता है। रिलासन 2-3 वर्ड्स बताता है जो तुम गलत पढ़ते हो, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं मानता, बल्कि बज़िद हो जाता है। अब तीसरा पैरा, वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर चिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, वट आई हैव अ कंप्लेन, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ, यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड अनदर, मेरी कोई और राय होती है, तुम्हारी कोई और राय होती है, सिंस यू डिक्लाइन टू गिव अवे, इसीलिए हमारा मामला जवाल पजीर है, देयर कांट अ वेरी वेल हाँ बी एनी अल्टरनेटिव, इसका कोई मुतबादल नहीं निकल सकता जब तक आप मेरी बात ना सुने, मैं आपकी बात ना सुनूं। आई एम टू मेक अ ब्रूकफील्ड अ थॉरोली अप टू डेट स्कूल, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ब्रूकफील्ड मॉडर्न स्कूल बने। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, मैं तो एक साइंस का बंदा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक, मुझे ये भी एतराज़ नहीं है कि तेरा तरीक़ाकार पुराना है। प्रूव्ड दैट दे हैड टॉट एफिशिएंटली, बशर्ते उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइडेड किया जाए, पढ़ाया जाए, प्रोवाइडेड मीन पढ़ाना, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज and no reason why they should be dealt with in a dead technical educational techniques, ये नहीं मतलब कि जो पुरानी ज़बानें हैं उसको हम पुराने स्टाइल से ही पढ़ा दें। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चिपिंग, मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ, दैट योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन आर एग्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई बिगन 10 years ago, जब मैं 10 साल पहले आया उस वक्त भी तेरा यही स्टाइल था और अब भी यही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बच्चों, अगले पैरे में कह रहा है, चिपिंग आंसर्ड स्लोली विद द प्राइड, चिप्स हड दरमी में बड़े फ़ख्र से जवाब देता है, और फॉर अ मैटर हम्फ दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रीडिसेसर, कोई शक नहीं तेरे जो पेशरो थे मिस्टर मेल्ड्रम एंड मिस्टर वेदरबाई केम हियर दैट हम्फ द 38 years ago, 38 साल पहले जब वो आए तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की थी। वी बिगन हियर मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई इन हम्फ 1870, 1870 में मैंने और वेदरबाई ने ये फैसला किया था कि मिस्टर मेल्ड्रम प्रीडिसेसर एंड वेदरबाई फर्स्ट प्रूव द सिलेबस, क्योंकि वेदरबाई पहला बंदा था जिसने ये सिलेबस को पास किया था। यू शैल टेक अ सीसरो विद द फोर्थ, और इधर देखो 4th क्लास को तुम सीसरो पढ़ाते हो। ही सेड टू द सीसरो टू द नॉट किकरो,
बजाय कीकरो के तुम सीसरो कहते रहते हो। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिप्स, बट वंस अगेन इट्स अ प्रूव माई पॉइंट। यकीनन मेरी बात आपको समझ लग गई है। यू लिव टू मच इन पास्ट, तुम माजी में रहते हो, नॉट अनफ इन प्रेजेंट फ्यूचर, ना कभी मुस्तकबिल में ना हाल में जाते हो। टाइम्स आर डिमांडेड समथिंग मोर फॉर देयर 3 or years fee the few scrap of the language nobody speak। हे लोग 3-3 महीने की फ़ीस इसलिए नहीं देते कि ये फजूल सी ज़बानें सीखें। nobody speak, जो कोई बोलता भी नहीं है। beside your boys don't learn even what they have supposed to learn, जितना उन्हें सीखना चाहिए तेरे बच्चे कुछ भी नहीं सीख रहे। none of them last year got through a lower certificate, पिछले किसी ने भी लोअर सर्टिफिकेट नहीं लिया। अब बच्चे यहाँ मैं वाइंड अप करके 2 मिनट आपको बताने लगा हूँ, समझ लें। कल हम पेज नंबर 26 के आखिर पे शुरू करेंगे और अगला पूरा पेज ये मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो मेरे बच्चों, एट द लास्ट 1 मिनट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 5 इम्पॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ रिलेटेड दिस चैप्टर। नंबर 1, द बोथ आर जस्ट started the raw mean झगड़ा बच्चों, raw, they both have a raw, so there is no going a decision। उसकी वजह यह है the both are hot tempered to each other। Number 2, Mr. Chips is going a stubborn, हड्डराम हुआ पड़ा है। whatever he is saying, he knows I'm wrong, even then he is not accepting। Number 3, Relation wants a change, positive change, but Chips is not giving a cooperating। Number 4, now at the end there is no solution at it at all, कोई हल ही नहीं निकलता। Number 5, when the Chips is for nothing, just saying a 38 years back it all happened, how is it possible? So मेरे बच्चों, best of luck all of you, you all have to hopefully known। कल मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर वाइंड अप कर दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड बुक की तरफ लेके जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर आइजक जावेद।